Hello students, this is Virendra, your IT teacher. I welcome you all on my YouTube channel. Students, as you know that in the previous class we have finished few topics which is related to chapter number 11, and in that chapter we have understood about how to create your table and how to insert your data. But right now in today's class we will have a important topic related to chapter number 12. Yes, that's a new chapter for you. Okay, it means that unit number 3 consists of 5 chapters, and today we are going to run the third chapter, right? Third chapter means unit number chapter number 12, and the name of the chapter is performing operations on tables, right? So students, without wasting any of the time, let's have a quick review that what topic we are going to run in this video. So students, these are the topics. First topic is inserting data in table. Number 2, editing records in a table. Number 3, deleting records from a table. Number 4, sorting data in a table. And the most important thing is referential integrity. Then after we'll have one more important thing, that's your relationship, and finally we'll have the field properties. These things we'll try to cover out in the videos. Okay students, so first of all let's have a quick recap of the previous thing. In previous video what we have covered, in the previous video we have covered how to create the table using the table wizard. Okay, as you know that this is only a practical part and it will not come here in your board exam, right? Apart from this we have also studied about data types, okay, like integer, float, text, date and time, boolean. These things we have already covered, right? And most important thing, how to start your LibreOffice base. These things I have already studied here, but you already know that I have given you 3 methods in the previous video. Yes, I have given you 3 methods to start the LibreOffice base. Okay, and if anybody talk about the file extension, you should aware about it. .odb is the file extension, right? So in the previous video these things we have covered, and in today's class we are going to start the topics which is I have already told you in the index, right? So students, without wasting any of the time, now it's time to start the LibreOffice base. Okay, so students, I have already told you that first of all you have to click on start. Then after what you will do, click on all programs. Then after what you will do, LibreOffice 7.3, and this is LibreOffice base. So this is the way to start your LibreOffice base. Now students, it's time for wait for a few seconds so that it can be open now. Now I have already created a database here, that's why I have used this one. Open an existing database file, okay, and click on open. And if you not going to use that, click on open button. Then already the student database is selected here because the receipt recently used here. So if you don't want to click on open button, click, you not any forcefully to click on that, right? You can directly click on finish button, right? Okay, so now I'm going to click on that. Let's wait to open the student database. Yeah, finally the student database is created now. As you know that inside the database you can create your table, forms, queries, reports, whatever you want. And currently we are having the chapter number 12, and in that chapter only and only we are discuss about the tables. Okay, so this is the, I have clicked on table here. Let's wait, you will have the details about the same. Okay, so in the previous video I have already told you about that what the interface is, what are the parts of the interface is. Okay, as you know that at the top side this is your title bar. In the title bar you will able to know about what the database we are using here. Then after this is the menu bar, this one. Then after this is table toolbar, okay, or you can say standard toolbar. This one database object pane. I have already told you there are 4 kind of objects are there.
table, queries, forms and report. Okay, this is the task pane. Okay, if you want to create the table, you will have the relevant task regarding that. And this is the object list pane. Whatever the object you have created, each and every object going to listed here. Okay, so these things we have created, right? Okay students, so now I have already told you about the what are the parts of this interface. Now students, it's time to start the first topic of the chapter number 12, and the name of the chapter is performing operations on the table. First operation we are going to perform, that is your inserting data in a table. So students, as you know that for inserting data in a table, you should know about how to create the table. This is the prerequisite. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेबल बनाना जानते हैं आप, तो आपको सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया जा चुका है. इस चैप्टर में सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कि हम टेबल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं हम. ठीक है, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट लिस्ट पैन है, ये यहाँ पर कई सारे टेबल मैंने यहाँ बना रखे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं नया टेबल आपके लिए बनाऊंगा, और उस टेबल में हम यहाँ पर एक कुछ डेटा इंसर्ट करके आपको दिखाएंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नाउ इज टाइम टू क्रिएट द टेबल. फॉर क्रिएटिंग अ टेबल, दीज आर द ऑप्शंस. इफ यू वांट टू क्रिएट द टेबल बाय यूजिंग द डिजाइन व्यू, you can do that, and if you want to have the wizard here, you can do that. ओके, दोनों में अंतर है. यहाँ पर जो दोनों तरीका है, मैं दोनों तरीके से टेबल क्रिएट कर देता हूँ मैं, और दोनों में डेटा इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए. आपको पहले यूज़ करता हूँ मैं क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू. मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करके ये वाला इंटरफेस आएगा. यहाँ पर ये जो व्यू है, ये कौन सा व्यू है? डिज़ाइन व्यू. इन दिस व्यू जस्ट यू हैव टू इंसर्ट टू थिंग्स ओनली. फर्स्ट वन फील्ड नेम एंड सेकेंड नेम फील्ड टाइप. यानी कि जो आपका कॉलम का नाम है वो बता दीजिए, और यहाँ पर क्या बताइए कि कॉलम का जो टाइप है वो क्या होना चाहिए. ठीक है, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, सपोज करिए मैंने दे दिया यहाँ पर रोल नंबर. ठीक है, अब रोल नंबर का डेटा टाइप आप सेलेक्ट कर लीजिए कि रोल नंबर क्या होना चाहिए. रोल नंबर हम यहाँ ले लेते हैं इंटीजर टाइप का. ठीक है, रोल नंबर के बाद ले लेते हैं नेम. रोल नंबर के बाद ले लेते हैं यहाँ पर नेम. नेम आपका टेक्स्ट वेरकेयर भी ठीक है. फिर इसके बाद ले लेते हैं क्लास. क्लास ले लिया हमने. क्लास किस में ले लेते हैं? नंबर्स की फॉर्म में ले लेते हैं. किस क्लास में है ये? ठीक है, तो नंबर यानी कि होल नंबर ले लेते हैं, इंटीजर यानी कि. फिर इसके बाद हम ले लेते हैं सेक्शन. ठीक है, सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पर वर्केयर. ठीक है, ये ठीक है. केयर भी ले सकते हैं, क्योंकि आप सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे तो केयर भी ले सकते हैं आप. ठीक है, CHAR. ठीक है ना, वर्केयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही. चलिए, इतना हो गया. अब इतना करने के बाद अब आप सेव करिए. यहाँ पर सेव करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि टेबल का नाम क्या होना चाहिए. सपोज करिए मैंने लिख दिया यहाँ पर टेस्ट टेबल, क्योंकि मैं यहाँ पर एक समझिए कि टेस्ट करने के लिए मैं टेबल बना, इसलिए मैंने ऐसे कुछ भी नाम रख दिया मैंने, जिसका नाम है टेस्ट टेबल. ओके कर दिया. अब हमसे पूछ रहा है ये कि अभी तक आपने प्राइमरी की किसी को बनाया नहीं है, आपने किसी को भी नहीं बनाया है यहाँ पर. तो अगर आपने येस कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक अपने आप एक रो इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, और उस रो में 2 कॉलम होंगे. फील्ड जो हो जाएगी आईडी के नाम से हो जाएगी. मैं करके दिखा देता हूँ आपको. ये देखिए, अभी कुछ देर में अपने आप आ जाएगा. ये देखिए, आईडी के नाम से अपने आप क्रिएट हो गया, और इसका जो फील्ड टाइप होगा वो होगा इंटीजर. तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई भी प्राइमरी की नहीं बनाए हैं टेबल में, तो आईडी के नाम से यहाँ बनेगा और उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर. ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं रोल नंबर को. तो यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए प्राइमरी की. ये आपका अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी, इसको हटा दीजिए. यहाँ से राइट क्लिक करिए और यहाँ कर दीजिए डिलीट. इतना काम करने के बाद अब आप सेव कर सकते हैं आप. ठीक है, यहाँ कर दीजिए येस, क्योंकि आपने अभी आईडी को डिलीट किया है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. अब आपका फाइनली जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो आपका बन गया है. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं. क्या नाम रखा था मैंने? टेस्ट. ये देखिए, ये रहा आपका टेस्ट नाम से. ठीक है, इस पर हमने डबल क्लिक कर दिया. डबल क्लिक करते ही आपका व्यू चेंज हो जाएगा. अब आपका आएगा टेबल डेटा व्यू आएगा. मैंने बताया था कि डिज़ाइन व्यू होता है और टेबल डेटा व्यू होता है. ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर कॉलम का नाम लिखा है रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। जैसे रोल नंबर लिखा मैंने यहाँ पर 1, नेम दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया नाम विनीत, क्लास दे दिया यहाँ पर 10th, सेक्शन दे दिया मैंने यहाँ पर डी। फिर इसके बाद टैब प्रेस करिए, TAB टैब जो कीबोर्ड में होता है, टैब की आप यहाँ करेंगे, न्यू जो कॉलम है उस पर न्यू आपका जो रिकॉर्ड उस पर आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा 2, फिर आपने नाम चेंज कर दिया, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, आपने साक्षी लिख दिया आपने, क्लास 10th, और यहाँ लिख देते हैं सेक्शन नंबर C, सेक्शन आपका हो गया C। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब की का प्रेस यूज़ कर सकते हैं आप। और जब आप बिल्कुल लास्ट वाले एक सेल में रहेंगे तो वहाँ से आप न्यू रिकॉर्ड पे यानी न्यू रो पे आ जाएंगे आप। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर कि हियर वी शुड यूज़ द टैब की। ठीक है, हमें यहाँ पर टैब की यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि डेटा में कैसे इंसर्ट करना है, और जो जो डेटा इंसर्ट करते जाइए फाइनली आप सेव भी करते रहिए आप। ठीक है, अब मैंने इसको बंद कर दिया अब। ठीक है, अब आपका यहाँ पर जो डेटा है वो आपका इंसर्ट हो चुका है। तो आपको याद क्या करना है कि डेटा जब इंसर्ट करते हैं हमेशा डेटा व्यू में जाना पड़ता है। डबल क्लिक करेंगे और आपको मिल जाएगा डेटा व्यू, टेबल डेटा व्यू। यहाँ पर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको केवल स्ट्रक्चर देखना है कि मेरे टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है, मैंने क्या डेटा टाइप दे रखा है, तब राइट क्लिक करिए, यहाँ पर पहले सेलेक्ट करिए टेबल को, राइट क्लिक करिए, एडिट पे जाइए, और यहाँ पे दिख जाएगा कौन कौन से आपने फील्ड नेम और कौन कौन सी फील्ड टाइप आपने यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके पास टेबल विजार्ड आएगा, और इस टेबल विजार्ड में आपको मैंने जो पहले प्रोसेस आपको सिखा रखा था वहाँ पे हम वही काम करेंगे। ठीक है, दो ऑप्शन, दो कैटेगरी दिख रही है, बिजनेस और पर्सनल। यहाँ मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। टास्क ले लेते हैं यहाँ पर, कि टास्क मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक तरह से जो टेबल हम बनाने वाले हैं क्या उसका क्या नाम हो। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल का नाम ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट देख लेते हैं कहीं पर है कि नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, एम्प्लॉय दिख रहा है मुझे यहाँ पर, रिजर्वेशन, ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस, कॉन्टैक्ट। ठीक है, यही सब दिख रहा है यहाँ पर। एक काम करते हैं, आप यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर सप्लायर्स। ठीक है, सप्लायर के बाद सप्लायर आईडी ले लेते हैं और यहाँ हमने क्लिक कर दिया ये। ठीक है, अब आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, जो चीज़ यहाँ पर प्री डिफाइंड फील्ड है उनको ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला मैंने बताया डिज़ाइन व्यू में, अपनी मर्जी से जो फील्ड आपको बनाना है बनाइए, ठीक है, उसका यूज़ करिए। लेकिन अगर आप ये वाला टेबल विजार्ड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं वही आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने एक ले लिया, मैंने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए, मैंने प्राइमरी की तो बनाया नहीं था, तो प्राइमरी की जब नहीं बनाया था तो इन्होंने आईडी नाम से यहाँ पर ऐड कर दिया अपने आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1, यहाँ पर सप्लायर आईडी दे देता हूँ मैं, कोई भी फ़ोन नंबर देना चाहूँ दे सकता हूँ मैं, कोई भी फ़ोन नंबर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि डेटा हमें इंसर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया, किस तरीके से टेबल क्रिएट करना है डिज़ाइन व्यू में, और किस तरह से आपको टेबल क्रिएट करना है यहाँ पर टेबल विजार्ड में। ठीक है, और डेटा इंसर्ट करने का तरीका ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये हो चुका है। ठीक है, इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, और अब हम आ गए हैं एडिटिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, इस वाले टॉपिक पर आ गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जो टेबल हमने बना रखी है क्या करना है, उसमें एडिटिंग का काम करना है। तो एडिटिंग वाले काम को करने के लिए आपको एडिटिंग मोड में आपको जाना पड़ेगा। एडिटिंग मोड में पहला काम क्या है, टेबल सेलेक्ट करना। ये रहा, टेबल सेलेक्ट हो गया। टेबल सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है, टेबल सेलेक्ट होने के बाद एडिट मेन्यू में जाइए। एडिट मेन्यू में देखिए यहाँ पर ये एडिट मेन्यू है, यहाँ पर
ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ मैं। ये रहा आपका एडिट मेन्यू, और एडिट मेन्यू में जाने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पर एडिट डेटा। देखिए कहीं एडिट डेटा है क्या यहाँ पर? नहीं है ना, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए और भी बेटर तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम इसको डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, हमने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद एडिट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ देखिए एडिट डेटा आपको ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपको ये समझना है कि जब कभी भी आप टेबल पर डबल क्लिक करेंगे तो टेबल डेटा व्यू मिलेगा, यानी कि जो डेटा आपने इंसर्ट कर रखा है वो चीज़ आपको यहाँ दिखेगी आपको। अब आपको एडिट करना है, क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करते ही अब आपका ये जो टेबल है एडिट मोड में आ चुका है। एडिट मोड में आने का पहचान क्या है कि ये आपको इस तरह से डॉटेड रेक्टेंगल आपको मिलेगा यहाँ पर। अब आपको लगता है कि जो जो चेंजेस करने हैं बस यहाँ पर कर्सर प्लेस करिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल कर्सर प्लेस करना है, और कर्सर प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पर लिखना है आपको 22। ठीक है, जैसे क्या करना है यहाँ पर 22 लिखना है आपको। Okay students, so if you want to insert data, already I have told you, but if you want to edit the data you have to use edit and then edit data. Once you have choose the edit data option, it means you are in edit mode. अब आपका एक नंबर का यहाँ सवाल बनता है आपका कि एडिट मोड पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि एडिट मोड में जाना है और उसके बाद एडिट डेटा। और इससे पहले इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले आपकी जो टेबल है, ठीक है, जिसमें आप डेटा मॉडिफाई करना चाहते हो वो टेबल ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर दोबारा क्लिक कर दिया तो क्या होगा, एडिट मोड गायब। दोबारा करना है आपको, यूज़ करना है, एडिट करना ही करना है तो एडिट डेटा में जाइए, हो जाएगा। और यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप देखिए टेबल डॉट डेटा का टूल बार है, ये टेबल टूल बार, इसमें यहाँ पर ये रहा आपका बटन एडिट डेटा, यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। चलिए चेंजेस करते हैं। आप यहाँ मैं लिख दिया 22 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11। ठीक है, चलिए ये आपका मॉडिफिकेशन हो गया, बस मॉडिफिकेशन हो गया है। और ये आपका जो चेंजेस ऑटो सेव हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, ऑटो सेव हो रहे हैं, यानी अपने आप सेव हो रहे हैं। बस अब आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं। तो बस आपको याद क्या करना है, यहाँ पर याद ये करना है कि कोई भी डेटा आपका है, कोई भी डेटा अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना है तो एडिट मोड में आपको जाना पड़ेगा। एडिट मोड में जाने के लिए पहले टेबल को सेलेक्ट करके ओपन करिए, डबल क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा, और फिर इसके बाद वहाँ पे एडिट और उसके बाद एडिट डेटा, या फिर आप एडिट डेटा वाले बटन को टेबल टूल बार से भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। So students, now I hope this practical demonstration is very much helpful for you. Now it's time to have the next topic, that is how to delete your records from the table. It means that we are moved to the third topic, that is deleting records from a table. इस टॉपिक पे आ गए हैं हम, ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। सपोज करिए मुझे सप्लायर नाम से जो आपका ये टेबल क्रिएट है इसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो क्या करें डिलीट करने के लिए, यहाँ पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके देखिए डिलीट ऑप्शन मिल गया। जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा ये डू यू वांट टू डिलीट द टेबल सप्लायर। अगर आपने येस कर दिया तो यहाँ इस डेटाबेस से ये वाली टेबल डिलीट हो जाएगी। मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं देखिए यहाँ पे आपको सप्लायर नाम से जो टेबल था वो डिलीट हो गया है ये। ठीक है, और अगर आपको कई सारे टेबल आपको डिलीट करनी हो तब क्या करेंगे आप, अगर एक साथ कई सारे टेबल को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमें कंफर्म करना है, दो चीज़ें कंफर्म करनी है। टेबल डिलीट करना अलग बात होती है और रिकॉर्ड्स को डिलीट करना अलग बात होती है। अगर आपको टेबल ही डिलीट करना है तो जो प्रोसेस आपको बताया इस प्रोसेस फॉलो करिए, राइट क्लिक और उसके बाद डिलीट, टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी डेटाबेस से। लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो आपको जाना पड़ेगा डेटा व्यू में। ओके, डेटा व्यू में देखिए दो रिकॉर्ड्स यहाँ इंसर्ट है। ये आपका पहला टपल है, इसको रिकॉर्ड्स को टपल बोलते हैं। ये आपका ये वाला क्या है, पहला वाला है, और ये वाला दूसरा है। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू हियर, इफ यू वांट टू डिलीट द सेकंड वन, just click one time here. Where I have clicked here, you have to select at one time.
क्लिक करते ही पूरी की पूरी जो रिकॉर्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब डिलीट करने का जो तरीका है, ठीक है, कई सारे इसके तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। बस यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और यहाँ देखिए डिलीट रोज आपका आ गया। अब हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड डेटा। अगर आपने यस कर दिया तो आपका रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट होगा, टेबल डिलीट नहीं होगी इस बार। ये देखिए केवल एक रिकॉर्ड आपका डिलीट हुआ। मल्टीपल आपके हैं, अगर कई सारे आपके पास रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट करना हो तब क्या करेंगे, तो मैं एक रिकॉर्ड में इंसर्ट कर देता हूं। मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, ये रहा। और आपको मल्टीपल आपको करना है तो एक से आप सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल की को प्रेस रखिए आप, और दूसरा, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं किसी एक पे आपने क्लिक कर दिया तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, कंट्रोल की को आपने प्रेस कर दिया। जैसे ही कंट्रोल की को आपने प्रेस किया तब आपका क्या होगा, यहाँ पर केवल आपका जितना आपने सिलेक्शन आपने किया होगा उतना सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने फिलहाल क्या किया है, 2 रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया है। अब अभी तक मैंने कंट्रोल की को नहीं छोड़ा है, ठीक है, कंट्रोल की अब मैंने छोड़ दिया। नाउ स्टूडेंट्स यू आर एबल टू सी हियर 2 records are selected. Now what you'll do here, just you have to press the delete button from the keyboard. मैंने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दिया है, यहां से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए सेव कर दिया ये, क्योंकि मैंने डेटा इंसर्ट तो किया था लेकिन सेव नहीं किया था मैंने, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कंट्रोल की को प्रेस किया, ये आपका दोनों सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक किया, डिलीट रो पे ऑप्शन आ गया यहाँ पर, और मैंने क्लिक किया डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड डेटा, ओके। यानी कि टेबल अभी भी है, टेबल में रिकॉर्ड्स डिलीट हुए हैं अभी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, so students now I hope each and everything is very much clear to you, and if you have any kind of doubt till now you can ask anytime. I'm always online for you, and if whatever the doubts I'm received, definitely you will have the reply from my side. Okay, now students it's time to move to the next topic, and the next topic is how to sort your data, sorting data in a table, sorting data in a टेबल, कैसे हम अपने डेटा को शॉर्ट करें हम, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है और आ गए हैं शॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल में। चलिए देखिए, सो स्टूडेंट्स फॉर सॉर्टिंग द डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेबल। सपोज आई हैव ओपन दिस टेबल, स्टूडेंट टेबल, आई हैव जस्ट मेक अ डबल क्लिक, विद इन फ्यू सेकेंड इट विल बी ओपन। Now finally you are able to see in the student table there are 3 kind of data, 101 Sunil, 102 Kavita, 103 Nitesh. Okay, now I want to sort this data. Sort means arrange karna. If you want to arrange your data ascending or descending, you can do very easily. Okay, suppose I want to arrange my data according to student ID. First of all select it, I have just clicked here and it is selected now, and suppose I want to do in a descending order, so this is the button for sort descending. The name of the button is sort descending. मैंने क्लिक कर दिया, देखिए शॉर्टिंग हो गई यहाँ पर अपने आप, और उसी हिसाब से नाम भी अपने आप शॉर्ट हो गया, ठीक है। If I want to arrange the name according to name, suppose I have selected this and then I want to ascending send, then what you will do here, just click on sort ascending. See, it is arranged in a ascending manner, first K then N and then S. So students this is the method for arranging your data, right? Now students it's time for to have one more subtopic. The name of the subtopic is sorting data using multiple fields. Sorting your data using multiple fields, right? I mean to say here, suppose you are having a different condition and still you want to sort your data. So how can you do that? How can you do that? First of all open any table. Suppose I have open this one, personal info. You are having some kind of data here, right? First one is Aadhaar number, second one is name. Okay, this table I have already created for you to make you understand in an easy manner. Okay, so for giving the conditions, okay, and then you are able to sort. How can I do that? First of all I just want to click on here,
राइट, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इस टेबल टूल बार में क्लिक किया, इसका नाम क्या है, शॉर्ट ऑर्डर। मैं फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, शॉर्ट है, क्लिक किया, अब मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया, इसका नाम क्या है, शॉर्ट ऑर्डर। अब इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर फील्ड नेम आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जैसे आपको जो आधार सेलेक्ट करना है वो कैसे, ठीक है, आप यहाँ डिसाइड करिए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए। तो मैंने सपोज करिए क्लिक कर दिया डिसेंडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, सपोज उसके बाद जब आपका ये सॉर्टिंग हो जाए, सपोज करिए मुझे नेम भी चाहिए, लेकिन नेम मुझे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर और भी कॉलम आपने बना रखे हैं तो और भी कंडीशंस आप दे सकते हैं। ओके, नाउ what I have to do now, click on OK button. See, after that you are able to see there that our data is arranged now based on the given conditions, right? So here you are able to see here the 8 is there, 3 is there, then 3 and then 2 here, and here I have name in ascending order. Okay, BM is in a single character, it will be assumed a single character, then after A, then after MK, DK, like this. So whatever the conditions I have given here, the data is arranged according to that. Okay, so students, now it's time to just close this window, and I hope you are able to understand each and everything what I'm trying to deliver here. Okay students, finally, whatever the doubts you have, you can just send it to me on my personal WhatsApp number, and if you have still any doubt, you can also make a call to me, right? Finally, where this video comes to the end here, and this is only a part 1. We'll meet in part 2 to have the rest of the topics, right? In the next video, what we are going to study here, we're going to study 3 topics. First one is referential integrity, then after relationship, and then after field properties. So students, it's time to say bye bye to you, and we'll meet in next video. So thank you so much for watching this video, and just give me a comment and whatever the things you require here, so that I can just motivate myself and give the better and better videos for you. So once again, thank you so much for watching this video.